Institute of Management Sciences, Professor Amitabh ji, other very esteemed faculty members, and my very dear students. You know, after a long time I have been invited for certain academic discussion to this institute. Why I'm saying this is because I hail from the same discipline, so I have a very special affinity and connect with the student who come here to study. Now, it's always heartening to come here and listen to the students. So I primarily wanted to listen to the students instead of making a lecture, delivering a lecture. We have some very accomplished and wonderful faculty in the institute. Many of them have joined the institute in last maybe 2-3 years, and by now I believe they all must have established themselves in the institute, and you all are supposed to get the maximum from them. Now, I was asked to speak something on the significance of a customer-centric organization in modern era. Now, if you talk about this, primarily I have nothing, no PPT, no paper, nothing, no notes, no points. So what I can do is, I first try and understand or establish the premise for our comprehension is that there is a modern era, and when we say modern era, we mean this timeline, time dimension is essentially making a change into the way organizations work, isn't it? Otherwise this word would not have been there in the title. Second is customer-centric organization. Now in this, again, there are 3 words. One is customer. You all know who's a customer? Is it? Is it? You all know? We'll discuss that. We'll see whether we all know. Then the centricism of customer. What does it mean? How does it take place? And third is an organization, right? You all know what organization is it? कितने लोगों को पता है what is an organization? जो बोलेगा फिर हम पूछेंगे भी. Like you said, you know what customer is, तो हम पूछेंगे भी आपसे. You'll say, you know how centricism takes place. So हम उस पर discuss करेंगे ना, isn't it? And third is the significance. I mean, establishing relationship between this dynamics that comes out of the change in the dynamics that comes out of this timeline being modern era, being termed as modern era, and an organization that is customer centric. So you write a big R. What is this role? How significant is this customer centric organization based on the changes that comes because of this change in timeline? You want to say something? कुछ कहना चाहते हैं? कहिए, दिल को रोकिए नहीं, बोल जाइए. हाँ, बटन बंद करिए. Now, so let us start with this most basic thing. Customer, is it? You know what customer is? कौन कौन जानता है? कौन कौन जानता है? आप आधा जानते हैं. You are raising your hand but not confident enough. You know this. Okay, 1, 2, out of close 3, 4, 5, 6. देखिए खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल रहा है. पहले 1, फिर अभी 6 हुए. In a session of close to 100, 6 people claim. You all are second year student or first year student? First year. Okay.
बट देन फर्स्ट सेमेस्टर तो हो गया होगा, मार्केटिंग पढ़ा होगा, पहली क्लास में बताया गया होगा व्हाट इज अ कस्टमर, तो आपको पता होगा. चलिए, एनी वन कैन वॉलंटियर, समवन फ्रॉम देयर, यू रेज्ड हैंड. हाँ बताइए, हु इज अ कस्टमर? Sir, the person who has desired to have something, who satisfied their needs. देखो मेरे पास पेन पेपर होता तो मैं लिखता है इसको. देखो तुम्हारा इनिशिएशन ही गलत है. What he says is, customer is a person who desires to satisfy. Is it? So, does customer essentially has to be a person? No. India customer नहीं है. अभी you must have seen the tariff war, US versus the rest of the world. नहीं. अभी आज मैं आ रहा था तो ऑन द वे आई रेड ए न्यूज़, अभी चाइना ने टैरिफ बढ़ा दिया. अब उसने कहा है ट्रंप ने कि 8 तक वापस नहीं लोगे तो हम और बढ़ा देंगे. वाई? बिकॉज अ कंट्री, इंडिया में आई मस्ट टेल यू, इंडिया में गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट कस्टमर. सबसे ज्यादा प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. बी डिफेंस प्रोडक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. आपका ये यूनिवर्सिटी है, हम कुछ खरीदते हैं तो इट्स नॉट आलोक राय और विनीता काचर हु बाइज, इट इज यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ हु बाइज, राइट? एंड द ऑर्गेनाइजेशन बाइज इज बीइंग पार्ट द गवर्नमेंट, तो हम गवर्नमेंट हैं. तो ए कस्टमर इज नॉट अ पर्सन. और कोई ट्राई कर रहा पीछे उधर? हाँ बोलो 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 बोलो, बात बोलो पहले. कस्टमर इज एन इंडिविजुअल बिजनेस. ओके. परचेजेस. अच्छा. to fulfill demand. अच्छा, to fulfill demand. Okay. How many of you agree with what he says or disagree? If you disagree, on what counts? You disagree or agree? Disagree. और कोई disagree? तुम्हारी बात तुम्हारे ही क्लास के लोग नहीं मान रहे भाई. एक तो कुल 6 लोगों ने हाथ उठाया कि कस्टमर जानते हैं वो, उसमें भी 6 में आपसी में मतभेद है. एक को हम लोगों ने खुद ही खारिज कर दिया. सोचो, बेसिक चीज जिसके लिए पूरा एग्जिस्टेंस है. आईएमएस का भी एग्जिस्टेंस है, लखनऊ यूनिवर्सिटी का भी एग्जिस्टेंस है, और हमारा तुम्हारा एज अ स्किल पर्सन भी वही है. नाउ ऑन व्हाट काउंट डू यू डिसएग्री विद हिम? Sir, if we talk about customers, so willingness is necessary in that statement. Oh, Willingness to buy something at a period of time. willingness is missing. Yes, sir. Ownership. उसने डिमांड बोला, डिमांड में विलिंगनेस इनहेरेंट है. डिमांड क्या होती है? डिमांड में विलिंगनेस होती है. हाँ, कुछ और भी होता है. The ability to pay. एबिलिटी भी होती है. Yeah. और पोटेंशियल. हाँ, बोलो. यू वर सेइंग समथिंग. यू, तुम बैठो. यू अग्री विथ हिम. अग्री विथ व्हाट? Is something? Is customer a thing? Huh? Customer is a person, a business owner that arises with demand or willingness, with want something and become a customer purchases. ये कौन सी बुक पढ़ी मार्केटिंग की तुम लोगों ने? बुक पढ़ी ही नहीं. कोई पढ़ी? कोई बुक बताइए, बताइए कोई बुक आप पढ़ लिए? फर्स्ट सेमेस्टर तो हो गया, मार्केटिंग पढ़ लिया. सो व्हाट इज अ कस्टमर? बोलो भाई, बुक बोलो, बुक.
Sir, end user of a utility bundle created by a Come on, business. एंड यूजर पे आ गए तुम, ये तो एकदम अलग इनका वो है, एंड यूजर पे। मैंने एक गाड़ी खरीदी और उसी समय मेरा टर्म खत्म हो गया। गाड़ी आते आते मैं तो रहा ही नहीं, और जो दूसरा वाइस चांसलर आया वो बैठा। आई एम नॉट द एंड यूजर, बट आई बॉट इट। देखो, पहले तो यू गाइज आर नॉट स्टडिंग बुक, आई मस्ट से। तो अभी तो हम मार्केटिंग पे आवेंगे तो और फिर खेल मदाड़ियों करोगे तुम लोग। यू नो, मैं एक तो ट्राई टू रीड बुक्स, ट्राई टू रीड गुड बुक्स। आई विल गिव यू 3-word डेफिनेशन। कस्टमर कौन है? Anyone and everyone. Man, organization, country, anything, whatever you think of. Whatever you think of. Who creates demand? So customer is one. Simple. Anyone who can create demand, जो भी वो देश हो, वो संस्था हो, वो व्यापारिक संस्था, organization हो. Organization and institution, someone was referring to the term called organization. You know, organization and institutions also are two different terms with different connotations, different meanings. So any body, be it an individual, like who we say anybody, or a body, be it an NGO, a group of people, you know, 5 दोस्त गए और कहा एक बॉटल की कोल्ड ड्रिंक ले आते हैं, सब लोग शेयर कर लेंगे, पैसे में भी और कंटेंट में भी। एक फैमिली ने टीवी खरीदी, सबने देखा उसको। सो बी इट एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप, एन इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, एनजीओ, एसोसिएशन, व्हाटएवर, हु क्रिएट्स डिमांड, जो भी डिमांड क्रिएट कर सकता है वो ग्राहक है। एंड व्हेन वी से कस्टमर, देखो एंड यूजर की बात करोगे तो तुम्हारा प्रॉस्पेक्ट कम हो जाएगा, बिकॉज मार्केटिंग और मैनेजमेंट और सस्टेनेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट बेस्ड ऑन हु परचेजेज, इज बेस्ड ऑन हु कैन परचेज। तो अभी मैडम ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया यहां, शी स्टार्टेड बेस्ड ऑन व्हाट? पोटेंशियल ऑफ द प्रोग्राम। अदरवाइज organizations will never create anything, isn't it? जो खरीदा जा चुका है सिर्फ वही चीज प्रोड्यूस होगी। So anyone who has the ability to create demand is a customer. Simple. But then comes something that you were referring to. What is a demand then? What is demand? अब ये तो डोंट टेल मी कि ये नहीं आ रहा। मार्केटिंग चलो नहीं पढ़ी, इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में, उसमें शुरुआती क्लास में बताया गया होगा व्हाट इज डिमांड। सो व्हाट इज डिमांड? डिमांड इज नीड। ये देखिए, देखो तुमको राष्ट्रपति का नाम पूछे तो प्रधानमंत्री का नाम ना बताओ, नहीं बताओ तो चुप हो जाओ। क्यों? यू नो व्हाई? जब हम राष्ट्रपति का नाम पूछे, प्रधानमंत्री का बता दिया, मतलब दोनों नहीं आता है। ऐसे तो लगेगा एक ही नहीं आता है, नहीं? सो व्हाट इज डिमांड? इज नीड। हाँ, बोलो और कुछ। डिमांड इज, देख लीजिए मैडम आपके सामने है, अमिताभ जी देखिए, आप ही बच्चे हैं। हाँ बोलो बेटा। Good afternoon, sir. As per my understanding, demand is quantity that a customer is willing and able to buy at the same time. Demand is quantity. Quantity of a product or a service that a customer is able and customer is willing and able to buy at the same time. Okay, I'll make certain corrections, but then let us see if someone else is sharing something.
Sir, हाँ, someone, yes. so willingness to pay and ability to pay. Willingness and ability. Yes, sir. देखो इसमें एक ही कमी है, जो पहली प्री कंडीशन है, विलिंगनेस तो है पे करने की, एबिलिटी भी है पे करने की, डिजायर है क्या बाय करने की. सो डिमांड कंसिस्ट ऑफ 3 फैक्टर्स. ए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिजायर टू हैव समथिंग. First and foremost is, so we as a marketer, what we do is we try and focus on creating desire. पहले ब्रांडिंग पढ़ते हैं, ब्रांडिंग सुना है, ब्रांड सुना है, अरे बोलो नौजवान लोगों, जोर से बोलो हाँ ना, यू नो एनीथिंग, सुना है. ये इतने सारे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, किस लिए आते हैं? लार्जली दे आर फोकसिंग ऑन creating desire to buy. अब फिर हम तुम सब ये भी पूछ सकते हैं कि डिजायर बने क्या? हाँ भाई, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए नहीं. सो व्हाट इज डिजायर? डिजायर टू बाय. चलो इतना नहीं जा रहे, मेरा छूट जाएगा आगे. There are 2 terms that falls within this bracket. One is need, second is want. लेकिन फिर what is a need? What is need? Do you need something? Do you need something? नहीं. देखो इतनी भोली है, वो कह रही, I asked her, do you need something? She says no. You need air, you need water, you need freedom, you need education, isn't it? So you need something, right? Psychology defines need as a state of felt deprivation. So for example, she does not need education and he needs education. Say, let us assume, ठीक? A felt deprivation falls, जैसे हम लोग छोटे थे तो आप लोग तो शायद जानते भी नहीं होंगे, डिबरी जानते हैं? डिबरी नहीं जानते? वो शीशी होती है, उसके ऊपर नीचे मिट्टी का तेल होता, ऊपर धागा निकाल कपड़ा रहता, उसको जला के उसके इर्द गिर्द हम भाई बहन बैठ के पढ़ते थे. और लैंप यूज टू बी अ प्रेशियस कमोडिटी. तो लाइट चली गई, लैंप मैंने समझते हैं जिसको शीशे से जो ढक सकते थे, तो इट यूज टू बी अ प्रेशियस कमोडिटी. तो वो तब इस्तेमाल करते जब उसी, मान लीजिए लाइट नहीं है और कोई घर में गेस्ट आ गया, तो उसको लैंप नहीं तो डिबरी जलाई और अपना पढ़ रहे. बहुत धुआं निकलता था उसमें. फिर इन्वर्टर आ गया, तो अब तो खैर बिजली ही आती है, तो इन्वर्टर का रोल कम हो गया. लेकिन अगर आपको आपकी कमी महसूस नहीं होती है तो वो नीड का पार्ट नहीं है. सो एज अ मार्केटर, अ deliberate initiatives are undertaken to make you realize. आरओ का पानी तो हम लोग बहुत बाद में पीना शुरू किया. अभी बिना आरओ का पानी आप लोग हल्ला कर दोगे कि आरओ नहीं चल रहा है. और हम तो इतने बड़े हो गए, हम लोग कहाँ, पहले तो वो टैप वाटर ही था, फिर बाद में आया वो एक कैंडल होता था, को शायद क्या बोलते थे, भूल गए हम. हाँ, वाटर फिल्टर होता, फिल्टर हो गया. फिर आ गया आरओ. अभी क्या यूवी और बहुत सारा अल्कलाइन वाटर, देखिए बॉटल रख के चल रही हैं. What अब this has now become part of your need and not want. I'm trying to make you realize that we are going to understand first condition of demand creation is desire to buy, and for desire there are 2 terms. One is need, second is want. नीड, हमने आपको रियलाइज कराया कि आरओ वाटर नहीं पियोगे तो बीमार हो जाओगे. आप मुझे बताइए, आरओ अगर काम ना करता हो, कोई बीमार हुआ या? लेकिन या आरओ पीने के बाद कोई नहीं बीमार होता, वैसा होता है? लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी वर मेड टू रियलाइज दैट मैनेजमेंट एजुकेशन नीड हो गई किसी की, आरओ का पानी नीड हो गया किसी का, इन्वर्टर नीड हो गई किसी की,
एयर कंडीशनर या कूलर, एयर कूलर नीड हो गया किसी का। कूलर घर के ड्राइंग रूम में लगाते थे, वो तब चलाते जब कोई गेस्ट आता था। अभी एसी का प्रयास करते हैं लोग। सो वन दैट वाज नीड वाज अ स्टेट ऑफ फेल्ट डिप्राइवेशन। आपको अपने अंदर किसी कमी का एहसास होना इज नीड। उस कमी को दूर करने का स्पेसिफिक मीडियम टू सैशिएट दैट नीड वाज वांट। तुमको शादी में जाना है तो सूट पहनना है, ये समझाया गया, ये नीड हो गई, लेकिन हमको रेमंड्स का सूट पहनना है, ये वांट में बदला। सो व्हाट मार्केटर्स हैव ऑर्गेनाइजेशंस हैव स्टार्टेड डूइंग वाज, वो जो फर्स्ट फैक्टर वाज डिजायर क्रिएट करना। पैसा दे सकते हैं नहीं दे सकते वो बात की बात थी, पैसा दे सकते हैं, पैसा रखे हैं, but that does not suffice for you to qualify to be a customer of a product. आपके पास मान लो आपके अकाउंट में या आपके घर में 5 लाख रुपए हैं, आप ये पोडियम खरीदोगे? ये 2-2.5 लाख रुपए का मिलेगा या शायद और सस्ता मिलता हो, आई डोंट नो। आप खरीदोगे? यू डोंट डिजायर, यू नो, आपकी एबिलिटी है पे करने की, यू डोंट डिजायर, but we may desire a number of things. Does your desire gets the backing of ability to pay? क्या उतना पैसा देने को तैयार हैं आप? इस पर भी what marketeers और organizations have been doing was, पहले तो desire create की by creating an ecosystem. We created an ecosystem where we मेड यू रियलाइज कि देखो भाई ये तुम्हारे अंदर एक कमी है, तुम आरओ पानी नहीं पी रहे हो, बीमार हो सकते हो। आरओ में वो टीडीएस वीडीएस क्या क्या सब कहानी चलाने लगे। बाद में अभी वही कहते हैं कि नहीं वो टीडीएस बहुत कम कर दोगे, वो नुकसान करता है। काउंटर थियरीज आने लगी एक ही 10 साल के साइकिल के अंदर। लेकिन दिस स्टार्टेड डेवलपिंग। सो डिजायर देन एबिलिटी। तो आपने कहा साहब मुझे मेरा एडमिशन हो गया, पिताजी को बोला पिताजी मोटरसाइकिल खरीद दीजिए, मुझे तो हॉस्टल में जगह नहीं मिली है तो मैं बाहर रहता हूँ, मोटरसाइकिल हमको चाहिए, दोस्तों के साथ जाना पड़ता है, अपनी यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है। तो पिताजी के पास मान लो पैसे हैं 5 लाख रुपए उनके अकाउंट में, बट वो कहते हैं बेटा अभी तुम नौजवान हो, साइकिल चलाओ, स्वस्थ भी रहोगे, पैसे भी नहीं लगेंगे, पेट्रोल का भी नहीं लगेगा। एबिलिटी है लेकिन विलिंगनेस नहीं है। अब एबिलिटी भी नहीं हो सकती, ऐसा हो सकता है जैसे तुम्हारे पास तो नहीं है। एज अ स्टूडेंट तुमको पिताजी ने अकाउंट में एक अकाउंट खोला, 10-20 हज़ार रुपए डाल दिए, कहा 2-2 हज़ार करके निकालना, तुम निकालोगे एसएमएस आएगा हमको, तो ज्यादा नहीं निकालना, हमको पता चल जाएगा। फिर तुम आए यहां पे तो तुमने देखा बाहर इंस्टीट्यूट के बाहर व्हीकल लोन वाला खड़ा था, 2 व्हीलर लोन लीजिए, आइए आइए 2 व्हीलर लोन लीजिए। What they did through that, what organization started doing was, एबिलिटी नहीं है तो एबिलिटी दे दो। जैसे डिजायर क्रिएट कर दी, तुमको कुछ पता नहीं है टीडीएस क्या होता है, टीडीएस में कौन सा मिनरल निकल जाता है, कौन सा रह जाता है, हमारी बॉडी को कौन सा चाहिए, हमारे बॉडी का मेक कौन सा है, यू हैव गॉट नो आइडिया, राइट? यू डू नॉट हैव एनी आइडिया, बट यू आर मेड टू रियलाइज दैट दिस इज एसेंशियल, दिस इज a felt deprivation. This is a deprivation that these organizations have started enabling you to realize that, and through that realization you started insisting onto RO। खरीदने के लिए फिर बताए अल्कलाइन वाला ले लीजिए, आजकल वो बढ़िया चलता है, मुझे बताएंगे वो 2-3 लाख रुपए का मिलता है शायद, हाँ 3 lakhs का, बताइए उसे क्या फायदा होगा? बॉडी को तो एसिड चाहिए खाना पचाने के लिए, और उसमें तो अल्कलाइन है, बट वो जो भी रीजन बताते हो। लेकिन नहीं है पैसे, लोन ले लो। बाय प्रोवाइडिंग यू दिस हम एबिलिटी भी क्रिएट करते हैं। जैसे डिमांड डिजायर क्रिएट की ना, वैसे एबिलिटी भी क्रिएट कर दी। और
एबिलिटी भी क्रिएट कर दी, विलिंगनेस भी चाहिए, पैसे हैं लेकिन नहीं दे रहे, विलिंगनेस भी क्रिएट करते हैं ना। भाई मेरी बात नहीं सुनोगे, मैं मार्केटियर हूं, तो विराट कोहली की सुन लो, मोटरसाइकिल खरीद लो। आपको मालूम महेंद्र सिंह धोनी, वो सबसे सस्ते दाम वाली टीवीएस की एक मोटरसाइकिल आती थी कोई, अब मुझे ध्यान नहीं है, वो 40-50 हज़ार 60 हज़ार मिलती होगी। हर मैगजीन अखबार कहता है वो 30 लाख की मोटरसाइकिल रखे अपने घर पे, और 30 हज़ार की मोटरसाइकिल का एडवर्टीजमेंट कर रहा है, और आप ही हम खरीद रहे हैं। तो आपको विलिंगनेस क्रिएट करा रहे हैं। मेरी बात नहीं सुनोगे, उसकी सुन लो। शाहरुख खान ने सैंट्रो का एडवर्टाइजमेंट किया, शाहरुख खान सैंट्रो चलाएगा लेकिन ऐड करेगा वो कौन, पान मसाला का ऐड करते हैं मूवी स्टार्स, वो पान मसाला खाएंगे तो उनको मूवी में लेगा कोई कि दांत खराब हो जाएंगे। लेकिन मार्केटियर की बात नहीं सुनोगे, उनकी सुन लो जिनकी सुनते हो। तो this is created. So demand as a marketer, what we do is we create demand. Like it is, customer is one who creates demand. Demand has three components. All these three may either be there by yourself or as a marketer we get that done. हम उसको कर देते हैं, और जो जितना अच्छा करता है उसको पीछे सैलरी मिलती है, isn't it? आप सोचो किसी को 15 करोड़ और 150 करोड़ के पैकेज पे क्यों रखते हैं? नहीं। सो उसके पहले एक फंडामेंटल लाइन और लेट अस सी इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। समवन वाज रेफरिंग टू अ टर्म कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। बोलिए बोलिए, जो मन में आए उसको बोलिए। सी एज अ स्टूडेंट आई एम सजेस्टिंग यू नॉट टू होल्ड योर आइडियाज। जो आपके दिमाग में गलत सही अच्छा बुरा कुछ भी आता हो उसको बोलना चाहिए। जे Profit maximization. ये कहां तुमको पढ़ा दिया गया भाई? ये किस किताब में पढ़ लिए? बैठो, ये कहां पढ़ते हो? कोई किताब बताती है ऐसी? देखो, ये किसी जमाने में ये कॉन्सेप्ट था, बहुत बहुत पहले जमाने में। देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मूव्ड टू वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। नाउ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या हुआ? इसलिए हम कह रहे हैं किताब पढ़िए। आप लोग किताब नहीं पढ़ते हैं। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या हुआ? हाँ, अब फिर हम वेल्थ पूछेंगे। So bottom line, बहुत easiest, because I've got to go for another program. I'm almost done with my time. The easiest and simplest form of finding how to assess a wealth is share value maximization, because that is considered to be a reflection of not just current in earnings but also future earnings, and that also incorporates variety of valuation of variety of intangible assets. So when you take all those factors into consideration, it gets reflected in the value of the share price, and this is how the wealth maximization concept came in. अभी we talk of stakeholders, value maximization, और बहुत सारे नए नए concepts आ गए. So अब this is the customer. Now what is customer centricism? एक छोटा एग्जाम्पल बताते हैं. अब जहाज में गए बहुत लोग, या ट्रेन में राजधानी में गए होंगे. अब मान लो आप जहाज में जाओ. अब तो खैर ऐसे करियर भी चलते हैं जिसमें खाना नहीं मिलता है. पहले तो सब में मिलता था, तो अभी भी मिलता है बहुत सब में. अब मार्केटिंग टीम सजेस्ट्स कि क्राफ्ट में, जैसे मान लो 180 पैसेंजर का क्राफ्ट है और उसमें 4 होस्टेस हैं, स्टूवर्ड या होस्टेस का. अगर 4 को 6 कर देते हैं
तो कस्टमर सर्विस अच्छी हो जाएगी, बिकॉज 1 घंटे में आप यहाँ से दिल्ली पहुँच जाओगे, 2 घंटे में मुंबई पहुँच जाओगे, तो उसी बेच में सबको, किसी को कोई पिलो चाहिए, किसी को पानी चाहिए, किसी को खाना सर्व करना है, किसी को मेडिकल इशू हो सकता है, किसी को और किसी तरह की सर्विस है, कोई बुजुर्ग है उसको कोई पर्सनल हेल्प चाहिए हो सकती है. तो मार्केटिंग टीम सजेस्ट कि इफ वी हैव इंस्टेड ऑफ 4 लेट अस हैव 6, और इफ वी हैव 6, इफ वी कैन हैव 8, we'll be able to serve our customers better. Project goes to finance. पहले HR के पास जाएगा, HR ने कहा ठीक है साहब हमको प्रॉब्लम नहीं, we'll recruit 2, we'll train them and we'll put them onto the job. When it goes to finance, it says कि साहब एक दिन में एक क्राफ्ट हमारा 16 घंटे फ्लाई कर रहा है, 6 घंटे के हिसाब से हमको लगभग 3 सेट चाहिए, तो 6 एक क्राफ्ट पे, और हमारे अगर 200 क्राफ्ट चल रहे हैं तो 600 नए क्राफ्ट, और 50,000 का एवरेज एक्सपेंडिचर रखें तो उस हिसाब से हमारा इतने लाख या करोड़ का आ रहा है. इसको कॉम्पनसेट करने के लिए वी नीड टू इंक्रीज आवर प्राइसेस बाय दिस मच. लेकिन प्राइस बढ़ाओगे, डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि फिर डिमांड घट जाएगी. सिंपल. अब क्या करें बताओ? Why is this happening? Because one decision of yours, when goes to the other, they both are taking their decisions in isolation, considering their own interest. Okay? तो अगर आप में से कोई बिजनेस एनालिटिक्स में एडमिशन लिया हो, लिया है किसी ने? और today we are going to have our first artificial intelligence lab inaugurated in faculty of engineering. अब आप चाहते हो कि हम भी AI पे कोई एक्सपेरिमेंट करें या सीखें, और वहां जाते हो तो इंजीनियरिंग फैकल्टी कहती वी वोंट अलाउ यू, बिकॉज यू आर फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज एंड वी आर फ्रॉम फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, वी वोंट अलाउ. क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट, डिसइंटरेस्ट. व्हाई इज दिस हैपनिंग? बिकॉज our decisions are taken in isolation. This customer centricism means all the decision that is taken in the organization is kept the customer being at the core, at the center. उसको केंद्र में रखकर यदि entire organization is taking a call. So if madam is the administrator of the institute, Professor Roy is professor in the institute, he is the technical director, Mr. Saxena is technical head of the institute. If they all take the decision in sync, keeping student at the core, there will be better harmony, and that is what is going to lead to the sustenance of the organization. Otherwise he'll say ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, या ये करने के लिए तो मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा. एज प्रोफेसर वो स्टूडेंट के संपर्क में है, तो वो कहते हैं, बच्चा कहता है नहीं साहब हमारा सिस्टम अपग्रेड करिए. एज एडमिनिस्ट्रेटर शी इज बॉदर्ड कि भाई नया सामान आएगा, उसमें इतना पैसा लग जाएगा, वो पैसा कहाँ से आएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो द ओवरऑल लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टूडेंट शैल नॉट बी सर्व्ड. यू विल बी द सफरर, and so will be the subsequent batches. आगे के बैचेस में बच्चे कम हो जाएंगे. वो कहेंगे साहब यहाँ तो हमको फैसिलिटी नहीं देते हैं जो हमको लर्निंग के लिए चाहिए, और हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे. Isn't it? So this customer centricism, why? Because when you talk of the objective, I mean the purpose of the organization, purpose is maximization of wealth, or all the stakeholders value. फिर हम वैल्यू में नहीं जा रहे, अभी और टाइम लग जाएगा नहीं तो. सो स्टेकहोल्डर्स वैल्यू, उसको बढ़ाने के लिए सस्टेनेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बढ़ाना है. स्टूडेंट उसका सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, या कस्टमर उसका सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. सो देयर प्लेजर हैज गॉट टू बी एनहांस्ड, isn't it? And if their pleasure has to be enhanced, the decision of the organization, irrespective of the function, has got to be taken keeping that customer at the center, at the core. Okay. Now what this modern era is going to play a role in here is
there were few important changes that took place. One, and probably the biggest, was the challenge posed by competition. There used to be a seller's market. There used to be a seller's market. Abhi it's completely buyer's market. Now what does the buyer's market means? एक ढूंढो हजार मिलते। एक चीज़ आपने सपने में सोच लिया कि हमको घर बनवाना है, और मुझे एक मार्केटिया, एक बैंकर ने एक बार कहे कि सुबह वो आदमी ने रात में सोचा और सुबह उठेगा तो उसके दरवाजे पे 3-4 बैंकर घंटी बजा रहे होंगे, साहब हमसे होम लोन ले लीजिए, हमसे होम लोन ले लीजिए। उनको सपना भी दिखने लगता है। इस कदर कंपटीशन आ गया। हाउ विल यू सर्वाइव? एंड sustenance of the organization is based on sustained inflow of customer. ये आएगा कैसे? Through sustained happiness, satisfaction, delight, ecstasy. These are different stages and different concepts. But this is possible only when you think of bringing in one competition. Second was technology, the intervention of technology in all our functions, the way we have been doing it. All that I talked of here, मान लो मैं आधे घंटे से आपसे बात कर रहा हूँ, I'm only trying to gauge your comprehension, your understanding, your ability, anything. I'm only trying to interact with you, trying to orient you to some of the concepts of management and marketing. Even if I'm not there, the recording may get played and anyone can view this anytime. It is this technology. Many other students who have not come here may also see that. Because of all these latest technical gadgets and technical platforms have started changing the rule of the game. नौकरी करनी, ऑफिस की ज़रूरत नहीं है। कोविड ख़त्म हुए इतने साल हो गए, उसके बाद भी people are working from home because it is actually a boon for the organization, वो आएगा, पानी भी पिएगा, टॉयलेट भी यूज़ करेगा, चाय कॉफ़ी भी लेने लगेगा, बैठने की जगह भी चाहिए। नहीं, तुम अपने घर में रहो, उसको भी मज़े हैं। वो चला जाएगा 1 महीने के लिए शिमला, एक रिसॉर्ट बुक करेगा, वहीं से काम भी कर लेगा, अपना घूम भी लेगा। So competition and technology, these are two very, very important factors that is changing the way customers and consumptions both are getting affected. So sustenance of the organization is possible only and only if the customer is kept at the center. There are a variety of ways in which one can bring in customer at the central focus of all our thinking, conception and execution. So this is all that I had to or I could. We'll have a separate session on certain specific topic. If you want any specific topic for me, you can communicate through your OSD and I'll have a separate session on the specific topic that you want me to. It could be from marketing, management, anything, any topic that you think that you want to have a separate interaction on. We can have a session at length for maybe 2.5 hours and we can have a discussion on that. So thank you very much for being so generous and patient listener. Thank you very much.